So this one is the last video on electrochemical cells, but not on electrochemistry definitely, because in my upcoming videos, I will be taking up numerical on electrolysis and electrolytic cells. Now this video includes some numericals, like the kind of numericals which we did in our previous videos, but it's in numerical ko practice karne se, you will have some more clarity regarding the concepts related to electrochemical cells. और इन न्यूमेरिकल में एक दो नई चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी थी अपने प्रीवियस वीडियो में बताते हुए. I haven't told you in my previous numerical on electrochemical cells, so that will also be covered up in this video, right? तो चलिए start करते हैं अपना first numerical. The first numerical says a potential difference of 0.25 volts is observed where an electrode system, कोई metal electrode system है M, it is connected to standard hydrogen electrode. तो metal electrode system M को standard hydrogen electrode से connect किया है and the potential difference or the EMF that is coming is 0.25 volts. If the direction of current is from hydrogen electrode to the metal electrode, calculate the standard potential of the electrode. Now by standard potential, we always mean standard reduction potential. तो हमें इस मेटल इलेक्ट्रोड का, इस एम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है. अब हमें जब किसी भी मेटल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है, वी नो दैट EMF, standard EMF of the cell is equal to E naught cathode minus E naught anode, or we can say standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. But among these two, like M and hydrogen, which one is cathode, which one is anode? So ये यहाँ से समझ आ जाता है. If direction of current is from hydrogen electrode to the metal electrode, so अगर हाइड्रोजन से मेटल की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, नो सॉरी नॉट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, करंट फ्लो हो रहा है, तो यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट मीन्स मेटल इज द वन जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि दिस इज आवर एनोड and the other one is जिसपे हमारी रिडक्शन हो रही है and this is our cathode. अब हमें सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, दैट इज 0.025 वोल्ट्स. नाउ आप बताइए हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0. सो यहाँ पे पुट किया, सो दैट मीन्स ई नॉट एनोड इज इक्वल टू माइनस 0.25 volts. So this is the standard reduction potential of metal. Reduction potential, sorry, potential of metal electrode. Right? यही हमसे इन्होंने पूछा है. So this is, so we are done with the first numerical. चलिए सेकंड करते हैं. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, कोई एक्स इलेक्ट्रोड है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मतलब ई नॉट एक्स आइन टू एक्स इज इक्वल टू 0.80 volts. Predict the direction of flow of electrons when it is connected to a standard hydrogen electrode. तो standard hydrogen electrode का जो standard reduction potential होता है, that is what? That is 0 volts या 0.00 volts भी लिख देते हैं, right? So यहाँ से clarity आ रही है कि this value is more than hydrogen वाला. So that means this is the electrode at which reduction will take place and this is the one at which oxidation will take place. Now you very well know कि अगर यहाँ पे X पे हो रही है आपकी रिडक्शन एंड द अदर वन पे हो रही है आपकी हाइड्रोजन पे हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? फ्रॉम ऑक्सीडेशन टूवर्ड्स रिडक्शन. सो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे फ्लो करेंगे बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम एनोड
to cathode. Since reduction potential of X is more than, यानी कि metal ion जो भी X ion है उसका more है than hydrogen ion, so that means हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी, hence electrons will be transferred from hydrogen to X. Next है, a cell is prepared by dipping a copper rod in 1 molar copper sulfate solution and a zinc rod in 1 molar zinc sulfate solution. So a classic electrochemical cell जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. The standard reduction potential of copper and zinc are given. अभी हमें ये आंसर करना है कि what will be the cell reaction, what would be the standard EMF of the cell, which electrode will be positive. Now it's very simple. We have been given reduction potentials of copper. So E naught copper ion to copper is equal to 0.34 volts and E naught zinc ion to zinc is 0.76 volt. यानी कि यहाँ पे होगी रिडक्शन और यहाँ पे होगी आपकी oxidation. So here reduction will be taking place, here oxidation will be taking place. So हमारी reaction क्या हो जाएगी? Reaction हो जाएगी zinc plus copper ion gives you zinc ion plus copper. Second is what would be the standard EMF of the cell? So E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. Now watch which one is anode and which one is cathode? This is our anode and this is our cathode. So cathode का reduction potential क्या है? 0.34 and इसका क्या है? minus 0.76. So this is equal to 1.10 volts. And which electrode will be positive? हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? एनोड से कैथोड की तरफ. तो जो हमारी एनोड होती है वो होती है नेगेटिव एंड हमारी जो कैथोड होती है वो होती है पॉजिटिव, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो जिंक इलेक्ट्रोड है दैट विल बी दी पॉजिटिव वन. एक और कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन, सेल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये भी आ जाता है. तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? जिंक, ये जिंक मेटल है सॉलिड, सिंगल लाइन जिंक आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में विच इज 1 मोलर, डबल लाइन, देन कॉपर आयन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, सिंगल लाइन कॉपर सॉलिड. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट सेल. अब करते हैं नेक्स्ट वन. यूजिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स predict the reaction if any that occurs between the following. तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यहाँ पे गिवन नहीं है बट आपको एग्जाम में रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होंगे, तो आपको उनके बेसिस पे ही बताना है जो हमें आयंस दिए हैं इनके बीच में क्या रिएक्शन पॉसिबल है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं फेरिक आयन एंड आयोडाइड आयन. अब आप खुद सोचिए इनमें क्या रिएक्शन पॉसिबल है. इनमें रिएक्शन ऐसे पॉसिबल है कि इफ दे रिएक्ट what will happen? Ferric can get reduced to ferrous and iodide can get oxidized to iodine. यही पॉसिबल है. फेरिक का फेरस बन सकता है, ठीक है, और आयोडाइड का आयोडीन बन सकता है, which means that ferric, just a second, ferric will undergo reduction to ferrous, right, and iodide will undergo oxidation to form iodine, right? यही होगा. अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा इनके रिडक्शन पोटेंशियल. अगर तो फेरिक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आता है एज कंपेरेटिव टू आयोडीन, तो डेफिनेटली फेरिक विल गेट रिड्यूस while iodide ion will get oxidized. So let's see what their reduction potential say. So ferric ion ka reduction potential is equal to, I'm checking from the book, it is plus 0.77 volt, and reduction potential of, because obviously iodine will get reduced ना, iodide थोड़ी होगा reduce, तो reduction potential तो इसी का लिखना पड़ेगा. So इसका है 0.54 volt. So obviously this is more.
So hence definitely ferric ion will get reduced while iodide ion will get oxidized. So yes, this reaction is possible. Ferric and iodide में ferric react करेगा iodide के साथ to give ferrous and iodine. ठीक है, सेकंड करते हैं इसमें between silver ion and copper. Now what will happen if these two react? This is the possibility कि जो silver ion है and copper में जब reaction हो तो silver ion changes to silver and copper changes to copper ion. ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिल्वर है that is getting reduced, right? And जो हमारा कॉपर है that is getting oxidized. Now it will be again decided on the basis of their reduction potential. अगर सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर आयन से ज्यादा आता है, so this is 0.80 वोल्ट और कॉपर आयन का होता है 0.34 volts. So this is more than this. So for sure, silver ion will get reduced to silver while copper will get oxidized. यानी कि इसकी हो जाएगी रिडक्शन सिल्वर वाले पे एंड हमारा जो कॉपर आयन है दैट विल गेट oxidized. जो मैंने above reaction लिखी that is possible. Yes, this reaction will take place. Third one is between ferric ion and bromide ion. Between ferric ion and bromide ion. Now here again what is the possibility कि ferric ion and अगर bromide ion react करें तो ferric will get reduced to ferrous while bromide ion will get oxidized to bromine. मतलब अगर मैं half cell reaction लिखूं so this is going to happen. यानी कि ब्रोमाइड की होनी चाहिए ऑक्सीडेशन और फेरिक की होनी चाहिए रिडक्शन. अब फेरिक की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है या ब्रोमीन की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, मतलब इसकी रिवर्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, वो हमें पता चलेगा इनके रिडक्शन पोटेंशियल से. सो फेरिक का रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ferric का is equal to 0.77 volt while reduction potential of bromine is equal to how much? It is equal to 1.08 volt. No, sorry, this one is more than this. So this is the electrode जहां पे reduction होगी. मतलब जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है ये पॉसिबल नहीं होगी, इसका उल्टा होगा. मतलब हाफ ब्रोमीन यानी कि ये कन्वर्ट होगा, सॉरी, इट विल टेक अप इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट रिड्यूस टू ब्रोमाइड आयन. सो अगर पॉसिबिलिटी है तो फेरिक आयन तो रिड्यूस नहीं होगा, ब्रोमाइड आयन की टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज मोर देन दैट ऑफ फेरिक आयन. सो अगर मैं बात करूं तो ये उल्टी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, मतलब इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी तो नहीं है. नो, मतलब फेरिक एंड ब्रोमाइड में से फेरिक आयन विल नॉट गेट रिड्यूस्ड बिकॉज ब्रोमीन की टेंडेंसी टू चेंज इनटू ब्रोमाइड आयन इज मोर. सो अगर मैं बात करूं ये पॉसिबिलिटी है, ब्रोमीन प्लस फेरस विल रिएक्ट टू फॉर्म दिस bromide ion plus ferric, because if we compare the reduction potential, then bromine की tendency to get reduced to bromide is more than ferric की tendency to get reduced to ferrous. So this reaction is possible, but this reaction is not possible. ठीक है, now let us move to fourth one. Fourth one किसके बीच में था? Fourth was silver and ferric. Silver and ferric. So again क्या reaction है कि silver and ferric if they react, if the reaction is possible, silver will change to silver ion and ferric will change to ferrous ion. मतलब silver is getting oxidized while ferric is getting
reduced. Now ferric reduce होगा या silver ion की reduce होने की tendency है, that depends upon their reduction potential. तो silver ion का reduction potential is equal to 0.80 volt, while reduction potential of ferric ion to ferrous is how much? 0.77 वोल्ट. तो ये ज्यादा है, मतलब इसकी रिवर्स रिएक्शन होने की टेंडेंसी है, यानी कि सिल्वर आयन विल गेट प्रोड्यूस, नॉट फेरिक आयन. सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. नो, इट विल नॉट बी पॉसिबल. बट यस, सिल्वर आयन विल गेट रिड्यूस्ड टू दिस, यानी कि इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी फॉर श्योर है. बट जो हमने बोला है कि क्या सिल्वर एंड फेरिक रिएक्ट करेंगे, नो, देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन दीज टू. नेक्स्ट है फिफ्थ वन, इट इज ब्रोमीन एंड फेरस. ब्रोमीन एंड फेरस. नाउ अगेन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ब्रोमीन एंड फेरस में, कि हमारा जो फेरस है वो हो जाए ऑक्सीडाइज, और हमारा जो, मैं इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे कर रही हूं, इसको मैं लिख देती हूँ हाफ एंड यहाँ पे कर देती हूँ ये ब्रोमाइड. राइट, सो दिस शोज कि जो हमारा ब्रोमीन है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू ब्रोमाइड, while ferrous is getting oxidized to ferric. Now this will depend upon their reduction potentials. तो क्या रिडक्शन पोटेंशियल है ब्रोमीन का टू ब्रोमाइड? इट इज 1.08 volts. एंड व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरिक, यानी कि इसका ऑपोजिट टू फेरस? This is equal to 0.77 volts. So obviously this is more. So this is possible. यानी कि bromine will get reduced. So this reaction is yes possible. Right? So this is how we predict whether a reaction is possible or not by looking at their reduction potentials. तो जो भी हमें ions या जो भी हमें दिया हुआ है आपके reactants में, आप उनमें जो possible reaction है वो लिखिए. फिर you will check कि क्या जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या जिसकी रिडक्शन हो रही है, क्या वो उनके रिडक्शन पोटेंशियल को जस्टिफाई कर रही है. If reduction potential is in accordance with what you have written in your cell reaction, then that reaction is possible. अगर reduction potential कुछ और कह रहा है, उसका opposite कह रहा है, तो then reaction is not possible. ठीक है, तो next numerical करते हैं. Calculate the electrode potentials of the following half cell. आपको दो हाफ सेल्स दिए हैं, एक ये और एक ये, इनके निकालने हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, और हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं इन दोनों के लिए, क्लोरीन का एंड हाइड्रोजन आयन का. ठीक है, अब मैंने जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकलवाए थे, मतलब मैंने जब इन पे न्यूमेरिकल करवाए थे अपने प्रीवियस किसी एक वीडियो में, सो आपको याद होगा वी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ हाफ सेल्स अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन. राइट, सो नर्स्ट इक्वेशन निकाल यूज करके हम, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करके विच इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली, हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालते थे. अब उनके अंदर मैं आपको एक पहले एग्जांपल देके समझा देती हूँ. जैसे सपोज मैंने इसका निकालने को बोला हुआ आपको, ठीक है, इसका, तो आप क्या करते थे, आप नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 upon n log, what do? Concentration of copper which is solid upon concentration of copper ion, जो आपको गिवन होती थी. एंड सॉलिड्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हम क्या लेते हैं, प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड की हम लेते हैं 1. सो इस इक्वेशन को हम क्या लिख देते थे इन दैट केस, E naught minus 0.591 upon n log 1 upon copper ion. राइट, ऐसे करते थे. अब ये तो बात है सॉलिड्स की, या प्योर लिक्विड्स में हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लेंगे. अगर आपको इनमें से कोई एक चीज, जैसे यहाँ तो ये सॉलिड है, अगर कोई एक चीज गैस हो, तो क्या हम उसमें इग्नोर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर को? नो, वी हैव टू यूज द वैल्यू दैट इज, मतलब जो भी प्रेशर की वैल्यू दी होगी, विल हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दैट वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन. हाउ? दैट आई विल एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल. तो
जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए अब आप फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल ये कहता है हमें कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ये हाफ सेल है आपका टू दिस, इसका आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF ले लो, या 2.303 इंटू आर, और टेम्परेचर स्टैंडर्ड है 298 केल्विन और एफ की वैल्यू 96500 लेके हम 0.0591 और 59 लेके कर लेते हैं। सो अपॉन n log, now here chlorine is a gas, so इसका pressure given है, this is a gas, so what will happen, you will write here in this case log concentration of chloride upon pressure of chlorine gas raised to its stoichiometric coefficient. Now what is the concentration of chloride? Concentration of HCl is what? It is 0.1 मोलर। तो ऑब्वियसली इसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी? 0.1 मोलर। क्लोरीन का प्रेशर कितना गिवन है क्लोरीन गैस का? 10 atm। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना गिवन है? 1.36। एन कितना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है? n इज इक्वल टू 1। सो माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग क्लोराइड आयन की हो गई हमारी 0.1, प्रेशर ऑफ दिस इज 10 रेज टू पावर 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा, ये पूरी चीज सॉल्व करके, ओ नो 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 नो, जस्ट अ सेकेंड, ये पूरी वैल्यू लॉग जो भी आप लेंगे ये आ जाएगा इनटू -3/2 एंड दिस होल थिंग will become 1.448 volts। so ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मेरा ये न्यूमेरिकल कराने का पर्पस ये है कि मैंने अपने पिछले इन नर्स्ट इक्वेशन के वीडियोस में एक भी न्यूमेरिकल नहीं लिया था जिसमें मैंने कोई गैस ली हो, राइट? कोई आपका जो हाफ सेल है उसमें देयर इज वन गैस, तो उसका प्रेशर हमें यूज करना है। मैंने जो भी लिए थे वो प्योर सॉलिड्स और आयंस थे। इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में आपके जो थे वो सॉलिड मेटल की स्ट्रिप थी, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं, तो वो हम मतलब मैंने उन न्यूमेरिकल में कवर नहीं किए थे, इसलिए मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। सो सेकेंड वन करते हैं अब इसका। सेकेंड है हमारा हाइड्रोजन का। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो ये रिएक्शन होगी हमारी ये। तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें ये गैस है, इसकी प्रेशर दिया है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी जो HCl की कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज 0.5 मोलर। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल ऑल्सो बी 0.5 मोलर। प्रेशर हमें गिवन है, सो E इज इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.591 अपॉन n log pressure of hydrogen gas raised to its stoichiometric coefficient अपॉन concentration of hydrogen ion। यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 है। इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट्स होता है, राइट? सो 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 log प्रेशर कितना है? 5 atm आई गेस, yes it is 5 atm। so 5 raised to 1/2, हाइड्रोजन इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा -0.3844 वोल्ट्स। सो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल। अब हम करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का, पर लास्ट न्यूमेरिकल कराने से पहले लेट मी टेल यू कि इसके अंदर हमने जो है एक गलती की हुई है। ये जो सेल है ये गलत रिप्रेजेंट हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है ब्रोमीन का विच इज 1.80 वोल्ट। पहले तो ये गलत है, इसकी वैल्यू होती है 1.08 वोल्ट, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। सेकेंड है कि अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.08 वोल्ट, सो यू नो दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0.00 वोल्ट, राइट? So
तो ये ज्यादा है, दैट मीन्स ब्रोमीन पे होगी रिडक्शन, हाइड्रोजन पे होगी ऑक्सीडेशन। और जो ये सेल रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर भी रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर भी रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेल पहले तो है गलत रिप्रेजेंट किया हुआ, इसको दोबारा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसपे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम पहले लिखते हैं, राइट, प्लेटिनम, राइट। फिर क्या लगाते हैं, सिंगल लाइन, फिर हाइड्रोजन की हो रही है ना ऑक्सीडेशन, तो 0.03 सॉरी मोलर, मोलर, राइट। फिर डबल लाइन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं प्लेटिनम ब्रोमीन स्लैश, और सिंगल लाइन, नॉट एग्जैक्टली स्लैश, सॉरी, ब्रोमाइडाइन 0.01 मोलर। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, बिकॉज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ब्रोमीन इज मोर देन हाइड्रोजन, तो द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इज दिस, विच इज ये, कि हाँ ये मैं बैलेंस करने के लिए कर रही हूँ, this is the reaction that is taking place according to which हमारा जो हाइड्रोजन है that is getting oxidized while our bromine is getting reduced। तो जो हमारा सेल है वो ये ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, ना कि ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल पे। ना इसमें भी हमें क्या लगाना है, अपना नर्स्ट इक्वेशन। तो आपको पता है ईएमएफ ऑफ द सेल is equal to standard EMF of the cell। I don't know, this is not erased, getting erased, तो मैं इसको बीच में ले लेती हूँ। So EMF of the cell is equal to E naught cell standard EMF minus 0.0591 upon N log। अब इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसका प्रेशर गिवन है 180 m, राइट। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, तो इसकी जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो क्या लेंगे, 1। तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग, मैं लिख देती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन राइट साइड वालों का इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज टू पावर 1/2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो ब्रोमीन का लेते हैं हम ये, तो दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो हो गया 1, तो आपकी इक्वेशन बन गई ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 1/2। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। So E naught cell is what? Standard reduction potential of reduction half reaction minus standard reduction potential of oxidation half reaction। रिडक्शन किस पे हो रही है, ब्रोमीन पे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.08 और ये है 0 हाइड्रोजन का, सो ये आ गया 1.08 वोल्ट। तो आपकी ईएमएफ क्या आ गई सेल की, इट इज इक्वल टू 1.08 माइनस 0.0591 अपॉन एन log concentration of hydrogen ion into concentration of bromide ion upon pressure of hydrogen raised to power 1/2। now हमें क्या concentration दी हुई है हाइड्रोजन आयन की, इसकी दी हुई है 0.03 मोलर, concentration of bromide ion is 0.01 molar, pressure of hydrogen is 180 m। तो ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो यहाँ से निकाल लीजिए आप ईएमएफ ऑफ द सेल 1.08। अच्छा एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू भी 1 है, यहाँ दिख रहा है हमें इस बैलेंस्ड इक्वेशन से, क्या दिख रहा है इस इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा मैंने यस लिखी है ना, हाँ ये इक्वेशन से, इससे एन की वैल्यू है 1, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 0.0591 अपॉन 1 लॉग 0.03 इंटू 0.01 अपॉन 1, सो दिस इज इक्वल टू 1.08 माइनस 0.591, ये आपका बन जाएगा लॉग 3 माइनस 4 आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये आपका बनेगा
log 3 into 10 raised to power minus 4 फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बनेगा, तो ये आ जाएगा 1.08 और ये सॉल्व करके आएगा +0.2082 विच इज इक्वल टू 1.2878, ऐसा कुछ वैल्यू आएगी, हाँ यही आएगी. सो दिस इज दिस EMF ऑफ द सेल. तो आई थिंक अब जो भी डाउट रहा होगा आपको रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, that have been cleared by the end of this video. So this was all about electrochemical cells पे ये numerical, and now I will be taking up numerical on electrolytic cells.